एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਨਕੋਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 1994 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਅਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। मुझे आप बिठाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए
तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना, ये रिश्ता बनाए, रिश्ता बनाए, रखना नहीं तू स्वामी मैं सेवक तेरा, तू स्वामी मैं सेवक तेरा, दास बनाए, दास बनाए, रखना जी हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी शैब्या को एक ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में लगा दिया और वहां से कुछ धन लेकर अपना संकल्प पूरा किया। सिर्फ एक सच के कारण कि मैं सारी जिंदगी मैंने सच बोला, अंत समय में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। हमें लग रहा होगा कि ये कैसा राजा है जो अपनी पत्नी को दुख दे रहा है, लेकिन देखियो सज्जनों, ये जो गृहस्थी है या फिर एक राजा होना कोई आसान बात नहीं होती। राजा को अपने परिवार के साथ साथ अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना होता है। जब कोई इंसान एक पदवी पर पहुंच जाता है, चाहे वह पदवी कोई संत की पदवी हो, कोई हमारे शहर का प्रधान हो या एमसी हो, उसकी बहुत अधिक जिम्मेवारी हो जाती है। कथा में हमेशा राम राज्य की बात होती है कि राजा राम ने भी अपने जीवन में अपने परिवार का परित्याग करके उन्होंने साम्राज्य की रक्षा की, उसका लालन पालन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जवान के ऊपर और अपने परिवार से ऊपर वे समाज को रखते थे। हरिश्चंद्र जी इतने सत्यवादी थे, भगवान ने जब उनकी परीक्षा ली तो वे खुद एक चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। चंडाल जो शमशान की रक्षा करता है, चंडाल ने उसको हरिश्चंद्र जी को रख लिया। अभी भी काशी में हरिश्चंद्र नामक घाट है, वहां पर चंडाल ने उनसे कहा कि महाराज, कोई भी यहाँ पर अपना दाह संस्कार करने के लिए आए तो आपका कर्म यह है कि आप उनसे जो टैक्स लगता है वह आप उनसे लें। जो भी सेवा लगती है शमशान घाट में, ये लेना आपका कर्तव्य है। तो इधर क्या होता है कि शैब्या का जो पुत्र रोहिताश्व, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, उसको सांप डस लेता है, वह खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। शैब्या वहां पर ब्राह्मण के घर में सेवा करती है। वह अपने पुत्र की जो लाश है उसको लेकर अपने पति के पास जाती है, कहती है मुझे अपने पुत्र का संस्कार करना है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे भार्ये, तुमको पता है कि यहाँ पर संस्कार करने के लिए
कुछ ना कुछ जो है दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या तुम वो लेकर आई हो? शहबा रोने लगी कि महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, चाहे इस समय जो इस शमशान का मालिक है, वो चंडाल है, वह नहीं है, लेकिन मैं अपने वचन का अटल हूं। कहने का मतलब ये है, चाहे मौत सामने आ जाए, लेकिन राजा ऐसे हुआ करते थे जो अपनी जवान से पीछे नहीं हटते थे। शैब्या ने कहा कि मेरे तन पर ये जो साड़ी है, यही मेरे पास एक वस्त्र बचा है, उसमें से भी आधी आप ले लो। तो हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र का संस्कार करने दिया। उसी समय जो गुरु विश्वामित्र थे वहां पर आ गए, कहने लगे, महाराज ये देव प्रेरणा से मैंने आपसे पृथ्वी ली थी, क्योंकि आपका अंतिम समय निकट आ गया है, तो ये आपकी आखिरी परीक्षा थी। भगवान भी देखना चाहते थे कि आप कितना सच बोलते हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र ऐसे राजा हुए जो साथ शरीर यानी अपने शरीर के साथ वह भगवान के पास गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सच बोलता है उसका, चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परमात्मा उसका साथ अवश्य निभाते हैं। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देकर रोहिताश्व को जीवित कर दिया और सारा का सारा राज्य रोहिताश्व को यानी कि हरिश्चंद्र जी के पुत्र को दे दिया। इसलिए जीवन में सच इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। मृत्यु सच है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए कि एक दिन हमको भी चले जाना है, फिर किस लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण प्रगट मनु गाए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्य सभी सुकृत यानी कि जितने भी हम पुण्य करते हैं उसके मूल में सच होता है। यदि हम पुण्य का कार्य करते हैं और सच का साथ नहीं देते या सच को स्वीकार नहीं करते, तो वे सारा का सारा पुण्य है, जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है। इसलिए इंसान को सच का साथ देना चाहिए, सच के ऊपर चलना चाहिए। हम सोचते हैं कि संसार में हमसे ज्ञानी कोई भी नहीं है। हम जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, जब थोड़ा बहुत भी कुछ धर्म का कार्य कर लेते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाता है कि मुझसे अधिक दानी, मुझसे अधिक तपस्वी और दुनिया में कौन है। ये जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही हमारी जो दृष्टि है वह समान हो सकती है सभी के लिए। हमें जीवन में बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं जिसमें हमें हमारी जो परीक्षा है वह परमात्मा लेते रहते हैं। ये जो गुरु पुराण है इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा ही लिखा है। जिस प्रकार किसी देश की कोई कानून की पुस्तक होती है, उसी प्रकार ये गुरु पुराण भी है। क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं इसका एक ना एक दिन फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। ग्रंथों में लिखा गया है, शरणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, कि भगवत की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। उसमें से सबसे उत्तम जो साधन कहा गया है वह है श्रवणम, कि सुनना, ग्रहण करना, कि हम हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी वस्तु जाती है ये शुद्ध होनी चाहिए। श्रवण में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम संसार में क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और क्या भोजन करते हैं। भोजन के ऊपर हम सबसे अधिक जोर देते हैं कि भोजन शुद्ध होना चाहिए। जरूरी भी है, क्योंकि शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। शुद्ध भोजन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे अंदर क्या जाता है, गुरु पुराण में लिखा गया है कि झूठी बात सुनने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है।
सुनने से क्या मतलब है? अब कोई हमको कोई बात सुना दे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम क्या सुनते हैं इसका भी हमारे अंदर असर होता है। कहते हैं कि जैसी संगत और वैसी रंगत, कि जैसी संगति हम करते हैं उसकी रंगत हमारे ऊपर अपने आप चढ़नी शुरू हो जाती है। तो सुनना, क्या हम सुनते हैं इसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। क्या हम देखते हैं, हम अपनी आंखों के द्वारा ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। यदि हम अपने आंखों के द्वारा कोई ऐसे दृश्य देखते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है, तो हमारे अंदर भी वह द्वंद्व चलता रहता है और वही चीज हमारे सपने में भी हमको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जो कुछ हम सुनते हैं उसका भी असर हमारे जीवन में पड़ता है, चाहे हम उस झगड़े का हिस्सा नहीं है। यदि हम सत्संग करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, उसी का हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि शरणम कीर्तनम विष्णु, कि शरण करना, भगवान का कीर्तन करना, उनको याद रखना, उसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इंद्रजीत शर्मा जी हम सभी को बिछोड़ा देकर परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में 26 साल तक समरा जी के यहाँ दफ्तर में कार्य किया। इतने समय तक किसी एक जगह पर टिककर काम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। नकोदर वासियों के लिए तो शर्मा साहब भी हमारे समरा साहब थे। किसी को भी कोई कार्य होता था वह शर्मा जी से ही जाकर मिलते थे। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को, इनके परिवार को और शहरवासियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। मुक्ति दे सागर श्री गरुड़ प्राण जी की हाजरी दे विच इकੱਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ स्वर्गवासी पंडित श्री इंद्रजीत जी शर्मा जी की रस्म पगड़ी ते जिथे परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए हैं, उथे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते भी आए। कबीरा जब हम पैदा हुए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी की शख्सियत दे करनी सत्कारयोग इंद्रजीत जी शर्मा का जीवनी, उन्होंने अपने जीवन दे विच जिथे अपने परिवार का बहुत खूबसूरती नाल निर्वाह किया, उत्थे समाज दे विच राजनैतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, समाजी तौर पे भी अपना जीवन समाज नूं अर्पित किया। उन्हां दी परिवार की फुलवाड़ी दे विच मेरा पुत्र समान बेटा कपिल शर्मा जी, पुत्र वधू सविता शर्मा और पोत्री दीक्षा, और दोनों बेटियां पूनम जो इंग्लैंड दे विच बहुत अपना जीवन निर्वाह और परिवार दे विच बड़ियां खुशियां नाल अपना जीवन निर्वाह करती है, तो दूसरी बेटी रंजीत
ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। स्वर्गवासी लाला भगत राम जी शर्मा, उन्होंने सारे बेटे, सारे असी परिवार एक दूसरे नूं बहुत चंगी तरह जिथे जानू हाँ तो उत्थे दुख सुख दे विच भी पूरा विचरदे हैं। मैनूं याद आ कि मेरिया सत्कारयोग बेटियां जद पढ़दियां सी ते उस वेले कॉलेज दे विच भी ये अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन दे विच पास होंदियां सी ते सानूं जदों पता लगदा सी ते परिवार दे विच लागे छागे हुंदे सी ते बड़ा ही मान प्राप्त हुंदा सी। सो जे मैं अपने बड़े वीर इंद्रजीत शर्मा जी की जीवनी बारे बोलण लगा तो शायद बहुत लंबा समा लग जाएगा। मैनू परिवार वालों हुक्म होया कि तुहाडा अज की इस दुख की घड़ी दे विच आके परिवार के नाल दुख साझा करना और उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करना। मैं तुहाडा सारियां दा परिवार वालों धन्नवादी हाँ। जिथे अज दी शोकमई सभा दे विच सारे ही राजनीतिक पार्टियां के आगू साहबान बैठे आ, सारे ही कौंसलर साहबान बैठे आ, होर भी शहर के राजनीतिक पार्टियां के आगू साहबान, समाजिक संस्थावां के आगू साहबान और धार्मिक ते एजुकेशन संस्था के आगू साहब भी बैठे। जो मैनू परिवार वालों हुक्म है समय की निजाकत नूं मुख रखते हुए जिन्हां शख्सियतां नूं मैं बेनती करांगा वो कुछ समय वास्ते अपने श्रद्धा के फुल भेंट जिहड़े वो करनगे, जिहदे विच मैं सब तो पहला बेनती करदा श्री दित्या भंडारा पूर्व प्रधान नगर कौंसल नकोदर जी नूं कि वो मंच ते आन ते अपने श्रद्धा के फुल भेंट कर। श्री दित्या भंडारा तो आए हुए आगू वक् धार्मिक संस्थावां तो आए हुए आगू साहबान मेरिया मताबों भैनों ते बुजुर्ग, अज आप इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हाँ क्योंकि मेरे कहने तो पहला धी साहब ने जिन्हें दसिया कि अज आप सारे पंडित इंद्रजीत शर्मा जी की अंतिम अरदास के श्रद्धा के फुल भेंट करांगे। अज एकत्रित हो गया। जेकर गल इंद्रजीत शर्मा जी की करिए क्योंकि असीं भी उन्होंने उस फुलवाड़ी का हिस्सा हाँ, सुख दुख और छोटे होंदे तो लैके अज बड़ा भी होया कि उन्होंने देख रेख के विच होया। बड़ा वक्त साडे परिवारां ने अज असी उस पीढ़ी नाल बतीत कर रहे हैं, पर इंद्रजीत शर्मा जी ने मेरे ताया जी ना पंडित कृष्ण शर्मा जी ना बड़ा टाइम बतीत किया। मेरे ग्रैंडफादर के नाल इन्हां दे बुजुर्गां ने बहुत टाइम बतीत किया। यो परिवार से सुख दुख और हर घड़ी के नाल हमेशा खड़ा रहा। पंडित जी ने दसिया कि सारी उम्र पंडित जी ने समरा साहब जिहड़े चेयरमैन साहब ने माकफेड उन्होंने नाल बतीत की, पर इस इंसान ने इन्हां शर्मा जी ने एक बाहों का फर्ज हर लीडरशिप के नाल दिखाया। पार्टियां तो ऊपर उठ के भी लोगों के काम किए ने। आप सारे जाणू हाँ जिस वेले समरा साहब पहला MLA बने ने, उस तो बाद मंत्री भी बने ने नकोदर समरा साहब का दफ्तर के विच इको एक नाम बोलता सी, वो सी इंद्रजीत शर्मा जी। किसी अदारे में जाते सी तो शर्मा जी को कभी ये नहीं पूछते सी कि तू किहड़ी पार्टी में बिलोंग करता कि कित्थों आया। उन्होंने एक कर्म होंदा सी मेरे को कोई दफ्तर नकोदर शहर का या नकोदर हल्के का बंदा आया, मैं अपन जिम्मेवारियां निभावां। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
उस परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि विछड़ी हुई रूह नूं शर्मा जी नूं अपने चरणों 'च निवास बख्शण, पिछे परिवार नूं, साडे अगे सारे साथियों नूं पाणा भरन दा बल बख्शण। जय शंकर जी, जय श्री राम। शोक सभा च उपस्थित सारे भैनों भराओ बजुर्गो, अज असीं सारे अपने रंगले साथी जिन्हों ने बड़ी देर जिदा समरा साहब ने रहनुमाई की आ नकोदर हल्के की, जे मैं कहां तो नकोदर शहर की रहनुमाई इंद्रजीत शर्मा ही ने की आ। जे नकोदर शहर कितने सौखा या दुखा वो इंद्रजीत शर्मा ही पता होंदा सी। समरा साहब ने आना, सानू इनफॉर्मेशन होनी, असी हर किसी सुख दुख की सांझ करनी। बहुत वधिया इंसान जी, मेरा बड़ा नेड़ता रही इन्होंने नाल। कोई समझ लो 18-20 साल, जिन्नी देर जे 26 साल इन्होंने उत्थे सर्विस की आ। सानू भी समरा साहब नाल जुड़िया नूं कोई 92-94 के जुड़े हैं। एक इहो जिहा इंसान जे कोई दिन त्यौहार होना तो सब नूं पहला इन्हां दा टैलीफोन आना, और इन्ने वधिया इन्हां दी लफ्ज़ जिहड़े फुल किरदे हुंदे सी जदों इन्हां ने किसी दिन त्यौहार ते तुहानूं बधाई देनी, सीसां देनियां। असीं भी सोचते हैं सानू इस चीज़ की कमी भी महसूस होनी है, परिवार में तो होनी है, सानू भी बहुत इस चीज़ की कमी महसूस होनी है। कारण सानू कई बार इस दिन त्यौहार का पता नहीं होंदा सी। इन्हां दे जो टैलीफोन आना तो इन्हां ने सानू याद कराना। कर तो कुछ नहीं सकते, पिछे काफ़ी तकलीफ च भी रहे, नहीं भी बोल होंदा सी, फिर भी इन्हों का टैलीफोन आना। मैं शर्मा जी को कहना, मैं कहा शर्मा जी थोड़ा आशीर्वाद साढ़े तो उदा ही बनया रहे, कोई इदा की गल नहीं, सानू पता होंदा तुसीं कश। कहते जी मेरे को रहा नहीं जाता कोहली साहब, मैं करना ही करना फोन। मैं कहा ठीक आ। कई बार मैंने याद आता फोन आना, कित्थे हो तुसीं? मैं कहा जी मैं कारोबार च ही हाँ, मैं आया, मैं थोड़े नाल चाह पीनी आ, मेरे को दुकान पर आके बैठना, कोई परिवारिक कोई राजनीति दीयां गल्लां सानू उन्होंने गुर देने भी इदा इदा करो। पर ठीक आ, कहते होंगे आ इंसान चले जाते हैं, उन्होंने यादां वापस रह जांदियां। शर्मा दी यादां हमेशा साडे दिल च रहणगियां, समाज च रहणगियां। कर तो कुछ नहीं सकते, याद कर सकते हैं जिहड़े इन्होंने पाए बोल रहे हैं, उन्होंने चलने की कोशिश करांगे हर एक दी जिसदा भी, क्योंकि वो मजलूम का बहुत साथ दिंदे सी। किसी भी महात्मा शाहूकार का तो हर कोई साथ दिंदा। वो एक इदां दे इंसान सी, जे कोई मजलूम आया उसकी बांह फड़दे सी, उहदे नाल जाके ਜਿਹੜਾ भी अफसर होंदा सी ਉਹਦੇ कोई काम करवा के दिंदे सी। मैं अपने लो अपने परिवार वालों नगर कौंसल नकोदर वालों शर्मा जी के चरणों शरधा के फुल भेंट करदा और परमात्मा अगे अरदास करदा, हे भोले बाबा, हे महामाई, इन्हों अपने चरणों च निवास दें, पिछे रिश्तेदारों परिवार सारे भाण मनन का दुख सहन की शक्ति दें। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरबाणी के महान वाक अनुसार मौत एक अटल सिखाई है। जो भी जीव इस दुनिया पे आया है उसने एक न एक दिन इस वासा की पूंजी खो के चले जाना है। पंडित इंद्रजीत जी शर्मा जिन्हें कुछ दिन पहला इस फानी संसार में हमेशा हमेशा लिए अलविदा कही, उस परमात्मा के वाहिगुरु के मालिक के चरणों में जा रहते हैं। उन्होंने जान तो बाद परिवार से असह अकह पाना वापरे, परिवार से दुखों का पहाड़ टुटे। इंद्रजीत शर्मा जी किसी जानकारी के मुताज नहीं, जिन्ना जीवन उन्होंने लोक सेवा दे विच लोगों के खिते दे विच लाया है, इसकी मिसाल दुनिया के विच होर किते नहीं मिलती। छोटा तो छोटा काम जिवें कोहली साहब दस रहे सन, अपने स्कूटर पर बिठा के लेके जाना, वो काम कराना, निस्वार्थ सेवा करनी। दफ्तर के विच बैठे सन, समरा साहब का समझो पूरे नकोदर का कंट्रोल जिहड़ा सी
ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੇਟੀ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਜੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲਾਡ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਨਾ ਸਕਣ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਮੰਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, PWD ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੰਬੇ ਧਾਮ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੋਨਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, बलदेव बब्बू समाज सेवक जी और अमृतपाल सिंह टक्कर चेयरमैन अरोड़ा वंश नकोदर, शमशान भूमि सुधार सभा कुलदीप रायपुरी, सुरेश नैयर प्रधान जी और समूह सदस्य, एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल श्री हेमंत शर्मा जी, इन्हां सारियां वल्लों
ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ ਧੀਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ एक ही गल आखांगा कि आए थे संसार में जो चले गए, नाम उन्हीं का रहा जो किसी के लिए कुछ कर गए। उन्हां दियां दित्तियां होईयां कुर्बानियां, उन्हां दी कीती हुई मदद, चाहे वो गरीब सी चाहे अमीर सी, उन्हां दे लई सारे एक ही हुंदे सन। सो उन्हां ने हर एक रिश्ते नूं, चाहे वो परिवारक रिश्ता सी, चाहे वो यारी दोस्ती का रिश्ता सी, चाहे प्यार का रिश्ता सी, बखूबी ना निभाया। मैं उन्होंने दे चरणों दे विच नमन करदा और अपने परिवार के वलों अपने वलों गुरु महाराज जी के चरणों च बेनती अरदास करदा कि सतगुरु जी जो भी आत्मा साडे पासों विछड़ के गई है उन्होंने सदा सदा के लिए अपने चरणों के विच निवास बख्शना और परिवार को विशेष भाणा मनण दा बल बख्शना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डेरा बाबा लाल बादशाह जी उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया। मैं परिवार वालों धन्यवादी हाँ। तो हुण मैं आखिर दे विच सत्कारयोग श्री किशन कुमार जी खट्टर, एडवोकेट नकोदर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू, उन्होंने बेनती करांगा कि शर्मा जी के चरणों श्रद्धा के फुल भेंट कर श्री के खट्टर चरणों के जुड़ बैठे बहुत ही सत्कारयोग भैनों भरावों, अज आप उस महान शख्सियत श्री इंद्रजीत शर्मा जो दिवाली वाले दिन परमात्मा के चरणों में आखिरी श्वास पूरे करते हुए लीन हो गए। तो सियाणियां का कथन है कि जीना झूठ ते मरना सच। जे गल करिए जीवनी की तो मैं समझदा कि बचपन तो लग के उस महान शख्सियत को देखिया। पुरानियां गल्लां करिए तो सब्जी मंडी दे विच स्वर्गवासी श्री भगत राम जी शर्मा उन्होंने आड़त का काम करना, तो साढ़े पिता जी की उत्थे हलवाई की दुकान होनी। दास ने भी गरीबी के वक्त के उत्थे काम किया और उन्होंने सब तो वड्डे पुत्र साढ़े महात्मा जी जिन्होंने परमात्मा वालों गुरु का नाम जपना सी, सेवा करनी सी, साढ़े राम जी महात्मा जी। उस तो बाद साढ़े इंद्रजीत शर्मा जी बहुत सारे शख्सियतों इलाका निवासियों को अज तक शायद ये नहीं पता होना कि वो फौज के भी उन्होंने बहुत अर्सा सर्विस की। तो साढ़े परशोत्तम जी मैं समझदा कि असीं हम उम्र ही हैं। उस तो बाद छोटा जी रजिंदर पप्पू असीं प्यार दे नाल कहिंदे हुंदे सी। परमात्मा ने खैर किस्मत दे रंगा ਉਹਦੇ भरी जवानी के ही छोटी उम्र के ही परमात्मा के चरणों में वही उम्र ही इन्नी रब वालों लिखी सी, वो सट वजी। छोटा जी साडा बब्बू
तो जे गल करिए इस परिवार की फुलवाड़ी की, तो मैं समझदा कि उस वेले भी असी इस परिवार की उही भले मानसी उही इंसानियत देखते होंगे सी जदों पंडित जी ने सानू भी शिक्षा दी और इस परिवार को भी शिक्षा दी। उसे गुणती की बदौलत ही मैं समझदा कि जे इन्हां ने काबलियत सी तो सबरा साहब ने जदों 1994 आके इत्थे इलैक्शन दे विच पहला बाई इलैक्शन जितया तो असी सारे साथी सी, तो इन्होंने जाके दफ्तर की सेवा करनी शुरू की और उन्होंने अपनी उस तीसरे नेत्र के नाल पहचानिया कि ये ईमानदार बंदा जिहड़ा साडे इस ऑफिस वास्ते सब तो ज़्यादा फिट है। और मैं इस दरबार के भरे मंदिर च ये गल कहूँगा कि जे ईमानदारी का बीड़ा सी तो उस शख्सियत के विच साडे नालों भी कई गुणा ज़्यादा सी। जे उस जिस सीट से सबरा साहब ने उन्होंने बिठाया सी, जे वो चाहता तो जिन्ना रुपया जो अज के सिस्टम के हो रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना, आप देखते ही हाँ किड्डे किड्डे लीडर जोड़े किस तरह रिश्वत अंडरग्राउंड लेंदे आ ते किस तरह कमाइयां करते हैं। लेकिन उन्होंने सबरा साहब ने एक गल कही सी भी तेनों इस गद्दी ते बिठाया, इसका हकदार तू डिजर्विंग आ, और उन्होंने उससे पूरे उतरे। अज मैं बड़े भरे मन के कह रहा कि सबरा साहब जोड़े वो खुद उन्होंने जो अज तो 4-5 साल पहला ऑपरेशन होया सी तो डॉक्टर ने उन्होंने कहा भी तुसीं घरों नहीं निकलना, जाती आ करोना नां दी भयानक बीमारी जी शुरू हुई आ। तो उन्होंने परिवार ने उन्होंने अपने घर के ही ताड़िया और ईमानदारी की गल आ भी वो जे चेयरमैनी तौर पर भी कोई काम करते हैं तो ऑनलाइन ही काम करते हैं, किसी के भी अज तक नहीं गए। जिदन संस्कार होया उस दिन भी साढ़े आ बैठे आ रणजीत नेगी जी ते कैप्टन साहब बैठे आ, ये तो मतलब इन्होंने आके उत्थे परिवार वालों चद्दर दी। सबरा साहब भरे मन के नाल साडे नाल गल कर रहे थे, बड़ा अखां भर के कहते मेरा एडा गूढ़ा साथी जिन्हें साडी एब्सेंस दे विच हल्के नूं सांभिया। और मैं ये भी गल कहूँगा बड़े फकर के नाल कि असीं भी भावें 94 के उन्होंने साथी सी सबरा साहब के ते इन्हां दे जिन्ने पिंडां दा जिन्ने महल्लियां दा जिन्ने घरां दा जां जिन्ने नकोदर इलाके के लोगों का नाम शर्मा जी नूं जवानी याद होंदा सी, फोन नंबर याद होंदा सी, सानू नहीं याद रहिंदा। 42 साल का मेरा भी 43 साल का प्रैक्टिस के तौर पर भी हो गया, प्रोफैशनल के तौर पर साडियां यादां भी बहुत आ। लेकिन वो खूबियां ये रब वालों ही किसी किसी इंसान च होंदियां। और 5-7-8 साल पहला दिल्ली ऑपरेशन भी करा के आए गले का, चाहते तो आराम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मन च कोई लगन सी भी मैं जेडे दफ्तर दे विच जो उन्होंने सुकून मिलता सी इस गल का। और वो भी गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगा, भावें टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी सानू पता भी करोना की भयानक बीमारी करके सानू टाइम नूं भी बचाना चाहिए। 2-4 गल्लां मैं तुहाडे नाल वो करूँगा कि शर्मा जी नूं जदों किसी गरीब ने आके कहना कि साडे कुड़ी का विआह है या साडे परिवार की मदद की लोड़ आ, तो उन्होंने चुप करके सबरा साहब को कहना भी सरदार जी यदी लड़की की शादी है तो आप इन्हों की मदद करनी। उन्होंने इन्हों कहना जाओ शर्मा जी आज जाके तुसीं आप सेवा निभा के आओ। तो ये ईमानदारी जी एडी भरी सी इन्हों कि इन्होंने घर घर जाके हज़ारां की गिनती से मैं कहां कि ना तो समझिया कि इंसान नेक जमने, ना उन्होंने परिवार जमना, तो ना इंद्रजीत शर्मे वर्गा मुड़ के सानू कोई नेक इंसान लभना। भावें सारे ही असी चंगे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जिस इंसान से जो खूबी सी वो साडे दिलों के विच है। परिवार की गल मेरे तो पहला हो चुकी है, बच्चियों के बारे गल हो चुकी। साडा जी कपिल शर्मा बच्चा बड़ा होनहार है, बैंक के सर्विस करता। मैं इन्हूं इक्को ही गल कहूँगा कि असीं तेनों उम्र बहुत वड्डे हाँ, परिवारिक तौर पर तो असीं तुहाडे नाल हमेशा ही खड़े हैं, लेकिन तेरे वास्ते सब तो वड्डी ड्यूटी ये होगी कि जे माँ की पूजा या बुढ़ापे की सेवा कर जाएगा तो इस तो वड्डा तेरे वास्ते स्वर्ग है नहीं, इस तो वड्डा तेरे वास्ते कोई जिम्मेदारी समाज में है नहीं। इस करके मैं वड्डा होने के नाते तेनों ये शिक्षा जरूर दे के जाऊँगा, भावें तू जिन्ना मर्जी नेक होवे, लेकिन बजुर्गों के मन के वड्डियां के मन से सत्कार होंदा। तो जाना सब ने आ, लेकिन वो मिठियां यादां साडे मन च रहणगियां। सबरा साहब ने अज भी मैनूं चेचे तौर पर फिरे कहा कि परिवार को दस दिओ, समाज के भी दस दिओ कि मैं अज तक किते भी नहीं आया। हालांकि उन्हों का मन करता, लेकिन उन्होंने परिवार वाले
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। होर परिवार वालों सारिਆਂ ਨੂੰ रिश्तेदारां ਨੂੰ सज्जना मित्रां ਨੂੰ बेनती है कि रस्म पगड़ी तो बाद कृपा करके लंगर तैयार है, लंगर छक के जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री विष्णु भगवान की जय। सदा समाप्त होता है करोगी हनुमान राम से लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण किया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता। सिमरन है तेरा नाम, सासा दीवाला सिमरन है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम।
ਆਸਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਧਨ ਸਿਮਰਨ